Yes. So, hello everyone. We were doing NCERT back exercises of the chapter Force and Laws of Motion. We had already done 20 questions at a stretch. So now we are at the question number 21. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 tons. And you are given the relationship between tons and kgs. First of all, Prithvi, you tell me, beta, what is given in this question? Yes, beta. Are you there, Ma'am, Prithvi? question number. It's Yes, ma'am. 21. 21, beta. Yes. Should I read it again? Ma'am, the distance is given 400 meter. Okay. Time is given 20 seconds. Okay. We have to find its acceleration Okay. and find the force acting on if it has its mass is 7 tons and 7 tons is equal to 1000. Okay. मैम वेलोसिटी तो 0 है ना? U is given to be 0. Okay. U is Yes, given to ma'am. be, yes, U is given to be 0. Then आपको distance given है, S is given. Then you are given, yes. Now our U is given out to be 0 meter per second. Then we are given the displacement, which is 400 meters. So what we need to find out? Tell me. हमें निकालना क्या है बेटा? What we need to find out? मैम एक्सेलरेशन Acceleration. निकालनी है और फोर्स निकालनी है. Okay, acceleration. So how will we calculate acceleration, beta? v minus u upon d. Okay, V minus U upon T. But tell me one thing, we don't have V over here. So how can we calculate the, मैम बट हम v निकाल सकते हैं. okay, how? मैम हमें डिस्टेंस की जगह टाइम दे रखा है. Distance की जगह time दे रखा है. So पर बेटा, तो we can straight away use our second equation of motion. S is equal to, no, ut plus यस मैम. half at हाफ का ad स्क्वायर. square. Okay, so इसमें हम values डाल के कर सकते हैं, right? So it is given to be 400 is equal to, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो I am not taking it to be as, so half into 400, तो कितना होगा? 200 A, right? ठीक है ना? तो ये वहां जाके डिवाइड होगा, तो मैम फिर आपका वो a आ गया 2 yes, मीटर A पर is सेकंड equal 1 by 200. yes, so it is A is equal to, नहीं 2 बेटा, मीटर 1 पर by सेकंड 200 स्क्वायर. कैसे बच्चे? It will be 2 meter per second square. Yes. अब आप F calculate कर सकते हो. पृथ्वी, what is the, नहीं अंशु, what is the formula for calculating force? MA. मैम 14000 Very good. So it will be, so F is coming out to be, हाँ बिल्कुल ठीक 14000 न्यूटन. Yes, very good. हम क्या करेंगे, टन को पहले केजी में बदल लेंगे, so ये बन जाएगा 7000 kgs, ठीक है, into आपका acceleration, we have got that to be equal to 2, so 14,000 Newton. Okay, so this is our force. तो हमने सब चीजें calculate कर ली. Now the next. Stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Find the force of friction between the stone and ice. Yes. Ab tell me. Yes, beta. Velocity given है. मैम हमें u दे रखा है 20 मीटर सेकंड. Yes, very good. We are given फाइनल u. वेलोसिटी 0 दे रखी है. डिस्टेंस Yes. 50 मीटर दे रखा है. बिल्कुल ठीक है. मैम हमें वेट भी दे रखा है स्टोन का कितना है. Okay. और हमें फोर्स निकालनी है. Yes. So so we are given u over here. U is given to be 20
meter per second, right? V is coming, it's given to be 0 meter per second, and S is given to be 50 meter. आशी, बेटा you tell, हमें देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मास हमें मालूम है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए. सो मेरे पास ये तीन मुझे पैरामीटर्स गिवन है. तो which linear equation या which equation of motion will I use to find out acceleration? मैम 2s is equal to v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि ये जो 9th का बैच है, इट रियली वर्क्स. मतलब आप लोग वर्क करते हो, उसको लर्न करते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग. हाँ, वेरी गुड भव्य. आई डोंट वांट कि हाँ देखो हर बच्चा इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, नो एवरीबडी कांट बी टॉपर्स, राइट? बट इफ यू हैव दैट zeal to gain knowledge, because you are our India actually, आपने ही कुछ करके दिखाना है, and everybody can't be topper, and it is not such a big deal. If you have knowledge, you are a topper, right? You just learn how to apply that, and I really feel excited. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब मुझे आंसर्स करते हो, और वो आंसर्स काफी सोचने के बाद करते हो. You don't put up in air. आप कुछ भी हवा में नहीं कर रहे हो, नहीं कुछ भी बोल दिया मैम के आगे. No, it's not like that. Your guesswork is also very logical, and that is the reason आपको और फोकस करना चाहिए बेटा. You please थोड़ा थोड़ा अपनी चीजों को और expand करो, knowledge को. Whatever help you want from me, I'm there. ठीक है? So just expand your knowledge. Yes. So the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2ax. तो इससे हमारा a आ जाएगा. तो v क्या है बेटा? 0. And 20 का square is minus, it will be 400, right? मैंने straight away लिख दिया बेटा. Divided by 2 into. मैम माइनस 4n. Yes. तो हमारा क्या? Oh sorry, यहाँ पे आएगा a, right? So it is 8. It is coming out to be minus 4. Parth beta, I am getting my acceleration as minus 4 meter per second square. So what does this mean? ये मतलब गलत तो नहीं है? ठीक है ना? I have calculated it correctly. Yes, Parth? Are you there? Yes, ma'am. Okay, tell me, क्या मैंने यहाँ पे कोई mistake तो नहीं की है? My acceleration is coming in negative. Is this correct? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Acceleration कभी negative में नहीं आ सकती. मैम मैम positive में होती है always. Always acceleration. Okay. थोड़ा सा सोचो. मैम न्यूटन नहीं होगा. नहीं बच्चा, ये acceleration है बेटे. अभी हम force पे तो मैम वो पहुंचे तो ही नहीं. force में होता है. अंशु, you tell me बेटा, मेरी जो acceleration मैंने calculate की, it is coming out to be. मैम ये deceleration है. Yes, acceleration हो सकती है negative जब आपका v is smaller than u. Okay पार्थ, हमारा ये नेगेटिव आ सकता है जब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होती है, मतलब आप रुक रहे हो, राइट? ओके पार्थ, चलो तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इट विल बी m into a, so that means it will be minus 4 Newton. Yes, is it clear? Okay. बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, आई हैड टाइप दिस थिंग, तो वो इरेज हो गया. क्या सबने कर लिया है बेटा, या शुड आई राइट इट अगेन? आपको चाहिए होगा पीडीएफ पे, कहते हो तो मैं 2 मिनट लगा के कर देती हूँ फटाफट, इफ यू वांट दैट. अदरवाइज फिर आई विल डू. वो मैम कर लेंगे, आता है ये तो. ठीक है, चलो फिर दैट्स हम गुड. कर लेंगे, तो इजी है. ओके ग्रेट. चलो फिर अब हम इसको करते हैं. An 8 kg engine pulls a train of 5 wagons, okay, each of 2000 kgs along a horizontal track. If वो 8 नहीं है, 8000 है. हाँ जी, 8000 ही बोला बेटा मैंने. मैं बोला 8 kg. नहीं नहीं नहीं, 8000 each of 2000 kgs along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force. ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है. सपोज ये हमारा इंजन है, ठीक है बेटा, ये हमारा इंजन हो गया. इसका वेट कितना है? 8000. ठीक है, इसके पीछे वी हैव बॉक्सेस, मतलब वैगन्स लगे हुए हैं. तो वी विल मेक आवर वैगन्स लाइक दिस ओनली. ओके,
So 1 2 3 4 5 वैगन्स हैं. 1 2 3 4 5. ओके, इसका भी वेट कितना है 2000. इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम. ठीक है. अब ये जो इंजन है ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है बेटा 40,000 न्यूटन का. ओके, ठीक, क्लियर. और जो ट्रैक है आपका वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. वो कितना है 5,000 न्यूटन. ओके, सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है कि नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या है. ठीक है. बेटा आप एक सेकेंड ये क्वेश्चन करोगे, मेरा ना इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, सिर्फ एक सेकेंड. यस बेटा, चलिए. सो यू हैव कैलकुलेटेड समथिंग. यस, सो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगी बेटा, जो आपकी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी. सो इट विल बी force, net accelerating force will be equal to actual force by the engine minus force of friction, right? So it will be 40,000 minus 35,000 yes, Newton. it will be 35,000 Newton. Yes, so it is coming out to be 35,000 Newton. Okay, the first part is clear. Now we are going to the second part. What you have to do, the acceleration of the train. अब देखो बेटा ये हमारा क्या है फोर्स. ठीक है, ये जो ट्रेन है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 35,000 की. अब मास क्या होगा ट्रेन का. अब जब आपने ट्रेन का मास कैलकुलेट करना, बिकॉज हमें एक्सेलरेशन चाहिए, अगर हमारे पास मास होगा और फोर्स तो ऑलरेडी है हमारे पास तो वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन. सो मास आपने किसका कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5. ये जो 5 वैगन्स गिवन है इनका जो मास है उनको आप एड अप कर दो, दैट विल अकाउंट एज योर मास ऑफ ट्रेन. सो इट इज 10,000, राइट. तो हमारा क्या आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 10,000. ओके बेटा, yes, clear. So 3.5. yes, so acceleration is coming out to be 3.5 yes meter per second square. Now C part. अब C part थोड़ा सा ट्रिकी है, फोर्स बतानी है वैगन 1. ठीक है, और ऑन वैगन हो रहा है. अब इनके कितने हैं बेटा, कितने वैगन्स रह गए बेटा. नो बच्चा, हमने फर्स्ट 3. नो मेरा बेटा, फर्स्ट की फोर्स हमने इसकी फोर्स बताना, ये कितनी फोर्स से खींच रहा है, कितने वैगन. इट इज 4. तो मास ऑफ 4 वैगन. यस, वेरी गुड. तो आप जब फोर्स निकालोगे 1 की तो इट विल बी 1/2. ठीक है, तो ये आएगा मास. एक्सेलरेशन कितनी थी बेटा, राइट. तो ये मुझे बताना कितना आएगा. 3.5 into 8 28. Yes ma'am. 28,000. क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यू मे एक्सपेक्ट इन योर स्कूल एग्जाम्स. ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सबको समझ में आ गया बेटा? आई होप एवरीवन. Excuse me ma'am.
करोगे? मैम सी पार्ट में लिखा है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन यस, 2। वैगन 2, लेकिन बेटा वैगन 2 जो है इट इज अटैच्ड विद दीज 3 आल्सो, वो अकेला नहीं जाएगा ट्रेन में। जैसे अब इंजन है वो फोर्स सिर्फ फर्स्ट पे लगा रहा है, लेकिन वो सबके सब खींचे चले आ रहे हैं, इसीलिए हमने इन 5 का वेट जो है वो ऐड किया था। ये देखो इसमें हमने क्या किया था, वी कैलकुलेटेड आवर मास ऑफ सिर्फ 5 वैगन्स का लिया था हमने इंजन को कैलकुलेट नहीं किया था, राइट? इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि वैगन्स का क्या मास है। अब ये जो वैगन 1 है ये आपका काइंड ऑफ इंजन बन गया, ये अब फोर्स कितनी लगा रहा है सेकंड इंजन पे। इसी तरह से जब सेकंड थर्ड पे लगाएगा उसकी फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो आगे वाले हैं इस पे इसकी फोर्स नहीं लग रही है, राइट? जब आप सेकंड का थर्ड पे कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ 3 वैगन्स का मास जो है वो ऐड करोगे, राइट? क्लियर? एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम, राइट? भव्य क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, चलें फिर आगे। पृथ्वी, एवरीवन इज क्लियर? चलें मूव ऑन करें बेटा। Yes, चलिए ma'am. ओके ग्रेट। Yes, ma'am. अंशु यू टेल मी बेटा व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। एन मैम मैंने ऑटोमोबाइल, अगली का आंसर निकाल लिया। अरे वेरी गुड ठीक है, दैट इज गुड। So an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? इसमें तो कुछ भी नहीं करना हमने, right? Do we need to do anything? We are given mass is given to be 1500 kg, right? And acceleration is given to be minus 1.7 meter per second square. So you have to calculate F, right? So F will be only the product of this, M into A. So who will do? Ma'am, 2.550 Newton. Okay. It will be 2550 Newton with a negative value, क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स लगेगी, ये उसके मोशन को स्टॉप कर रही है, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय अंशु। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन है, हम तो इसे रिटार्डेशन नहीं लेंगे? रिटार्डेशन, हाँ बेटा, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। रिटार्डेशन इज अ मैम फिर टर्म। माइनस माइनस कैंसिल नहीं होएगा? किस चीज का कैंसिल होगा बेटा? ये अंडरस्टूड है, अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं भी लगा रही हूँ, अगर क्वेश्चन में इट इज रिटन आप यही लिखोगे, अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो यू हैव टू राइट that F is equal to 2550 Newton is required to stop the vehicle. Okay, you have to use that word. Okay, Otherwise, yes, you have to give some indication कि ये जो force है it is acting opposite to the direction of motion. ठीक है, वो हमने इंडिकेट कर दिया, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया माइनस साइन के साथ। अगर आप माइनस नहीं लगाना चाह रहे हो, आपको भूल गया है, आप बाद में आप कर चुके हो, तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर दो, ठीक है, कि दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल। ओके, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि दिस इज नेगेटिव ओनली, राइट? नाउ अंशु Okay, यू ma'am. टेल मी बेटा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v? क्या फॉर्मूला होता है बेटा मोमेंटम का? पहले तो मुझे बता, मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं, कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? मोमेंटम इज इक्वल टू P. p, वेरी गुड। p इज इक्वल टू m into v। yes, and I asked Anshu, now she knows the answer, right Anshu? Chalo. Okay, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. Okay, what is the friction force that will be exerted on the cabinet? Excuse me मैम, हाँ जी, हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में बी और सी ऑप्शन सेम ही है। B और C, हाँ मे बी यहाँ पे ना शायद इसमें मिसप्रिंटिंग होगी हो, सेम ऑप्शन है, ठीक है आपकी बात, हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, ओके, M का स्क्वायर कर देते हैं, ये लो, राइट? यस मैम। हमने तो वियर्ड बनाना है बस उसको, राइट? यस मैम। ओके, नहीं बट ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन।
अब बताओ मुझे, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो कितनी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्सर्ट हो रही है। अब ये किस देखो हमें सिर्फ क्या गिवन है, देखो ये आपका कैबिनेट है, आप इसको धक्का मार रहे हो विद 200 न्यूटन, तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी एक्सर्ट हो रही है इसके ऊपर, बताओ मुझे, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगा। पार्थ? मैं फोर्स लॉ। मैम ये अपोजिट नहीं करेगा? यस, वेरी गुड आशी। पार्थ आपको पता चल गया होगा कितनी वैल्यू आएगी इसकी। अरे वो थर्ड लॉ था ना हमारा, नहीं थर्ड लॉ क्या था, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यस रिएक्शन। यस, तो यहाँ पे भी 200 न्यूटन जो है वो उसको अपोज करेगी। ओके, सो एक्शन फोर्स, अच्छा पार्थ इज नॉट देयर, दैट इज व्हाई ही डिडंट आंसर मी। माइनस 200 नहीं होएगा? हाँ जी हाँ जी, माइनस 200। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स कि इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, हम लिख देते हैं, सो इट इज 200, इट विल बी माइनस 200 न्यूटन। ओके क्लियर? अगर आप माइनस नहीं लगा रहे हो, जैसे सपोज मैंने नहीं लगाया, तो आई कैन राइट डाउन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दैट वुड बी जस्टिफिकेबल। यस, तो दैट डायरेक्टली मीन्स कि हाँ जी उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर बेटा? यस, चलिए अब देखते हैं। ओके, अब बेटा 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ईच ऑफ मास 1.5 kg, वो ना सेम लाइन पे जा रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये भी एक है, इसका मास है 1.5 kg और इसका मास भी 1.5 kg। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी जो है वो ठीक है, जैसे सपोज ये आगे जा रहा है तो ये नहीं, हम इसको इधर लेके जाएंगे क्योंकि इनके टक्कर हुई है इसीलिए। ठीक है, ओके क्लियर? अब इन दोनों की जो वेलोसिटी थी दैट वाज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। अब इनके बीच में कोलिजन हुआ एंड दे स्टक विद ईच अदर। ठीक है, चिपक गए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको अच्छा ओके बात, बट हमें इसको लॉ ऑफ मोमेंटम क्या था, वो m2 equal to m1 v1 plus it was m1 v1 plus m2 u2। इस केस में बेटा हमारे m1 v1 plus m2 v2 मास है वो कंबाइन, इसका रिटर्न m। अब देखो तो इसमें m1 u और u2। ठीक है, मैंने क्या यहाँ पे कॉमन लेके आई हैव ये बना दिया इक्वल टू वेलोसिटी बनी लेकिन 3v जो है फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 2.5 मीटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ जी वाइश बेटा। मैम यस, वो हमने क्यों लिया? पता है आपको कैसे किया, मैंने इसमें फॉर्मूला बनाया, ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे कैलकुलेट u1 क्या है, m2 क्या है पता ही, और वो कितना है 2.5। ठीक, दोनों ही चीजें सेम है लेकिन मैंने क्या 2.5 प्लस 2.5 कितना। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। When we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force। जी बात ठीक है बिल्कुल। If the object is a massive truck parked alongside the roadside, ठीक है, along the roadside, it will probably not move। Okay. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck doesn't move। देखो बेटा, एक ये ट्रक है, ठीक, अब इट इज स्टैंडिंग। ओके, मुझे ये बताओ कि ये अगर एक जगह पे खड़ा है तो why this truck is not moving? हम बिकॉज जो उसके पीछे से फोर्स लग रही है वो उसकी साइड से भी लग रही है और जो ऊपर से फोर्स लग रही है वो नीचे से भी लग रही है। यस, तो इसकी जो फोर्सेस हैं वो हर साइड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज व्हाई ये जो फोर्स है ये कैंसल आउट कर जाती है। ओके, तो इस वजह से इसकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी
अपना inertia of rest को it will not drop until and unless an external force is applied, क्योंकि इस पे जो भी forces लग रही हैं they are of balanced nature. ठीक है बेटा, ये बैलेंस नेचर की हैं, जो भी फोर्सेस लग रही हैं दे आर ऑफ बैलेंस्ड नेचर. ठीक है बेटा, एंड वी नो कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इट विल बी सस्पेंडेड ओनली इफ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. ओके, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, गिवन अप ओनली व्हेन an external unbalanced force is acting. Okay, word is unbalanced. आपको कंटेंट जो ना इसमें आ रहा है मैम, मिनट इशू होगा वैसे मेरे को यहाँ पे कंटेंट अभी बीच में आ गया था. चलो बाद में. ओके, अभी तो इट इज कम. अभी तो है, ठीक है, अभी है. ओके. चलो, a hockey ball of mass 200 gram traveling at this speed is stuck by a hockey stick so as to return it to the path with the velocity of itna. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. Change in momentum कैसे निकालते थे बेटा? m1 v1 minus m1 u1. m1 एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. यस मैम. ओके, ओ श्योर पृथ्वी. यस मैम. अब we will take m1 as common. ठीक है बेटा, हमने m1 जो है वो कॉमन ले लेंगे. तो v1 क्या है बेटा? v1 is 5 minus 10. ओके, क्योंकि ये इनिशियल है और ये आपका फाइनल है. ठीक है जी. तो m is 200 over 1000 into 5. So it is coming out to be 2 with a minus. So it is delta. माइनस 5 आएगा. हाँ जी, हाँ जी मैंने ये लगा दिया बेटा स्टार्टिंग में माइनस ना. तो इट इज -1 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, यस. चलो great. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. A bullet of mass 10 grams traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block, comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block and also calculate the magnitude of the force exerted. Okay, so now देखो बच्चे, अब इसमें पहले हम लिख लेते हैं कि what is given to us. We are given mass is given to be 10 grams. Then we are given u is given to be 150 meter per second. V is 0. Okay. And V is given to be 0. Okay. So अब हमें ये calculate करके we need to have A. मतलब यहाँ पे A की भी लगी है. फिर almost kind of में A भी लिखा है. अब है इससे हम A क्या करते हैं? A means summary 8,000. What is the direction? Yes, F is going to be 10 by 1000 into minus 50. Now S is calculate करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज? S is equal to ut plus तो भी कोई इशू नहीं है. half into okay, tell me this minus 45 by 20 है ना. यहाँ पे करना है आपको by 10 minus 45 और अभी will come out to 90 minus 70 by 20 is 2.8. Okay, so we are coming to rest. Okay, Yes, ma'am. okay, then next question की तरफ. And of mass with the velocity of 10 meters right and the stationary wood block
then they both move the impact and just after impact. ठीक है, and आपको combined object, हाँ जी बेटा, yes बेटे, मैम इसमें हमें 3 चीजें देखी हैं, collides with, sticks with and sticks to. हाँ जी, ये मैं काटने ही लगी हूँ बेटा, ये आई थिंक मिसप्रिंट हो गया था. It will stick with the wooden block. ठीक है, तो इनिशियल केस में, ठीक है, that will be calculated as m1 plus m2 u. ये तो है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक दिया गया, इनिशियल जो है इनिशियल है वो 10. ओके, फाइनल देख लेते हैं, हम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कितना वेलोसिटी हमें पता नहीं है, बट आप सोलो मतलब आपका. तो बेटा v is coming out to be 10/6 or we can say 5/3. yes, so this is your final velocity. और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो फाइनल मोमेंटम, क्योंकि हमसे ये पूछा गया फाइनल मोमेंटम जो है, दे हैव आस्क्ड स्पेसिफिकली. सो फाइनल मोमेंटम जो है आपको ये देखना चाहिए कि फाइनल मोमेंटम भी इनिशियल मोमेंटम के जितना ही आएगा. तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके भी देखते हैं, pf विल बी इक्वल टू 6 × 5/3. सो 3 इससे कैंसिल ऑफ हो गया, तो आपके पास 10 ही आ रहा है, और इनिशियल भी 10 था और फाइनल भी 10 है. सो आपका इससे इट इज प्रूव्ड कि आपका जो मोमेंटम है इट इज बीइंग कंजर्व्ड. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum and find the maximum force. क्या करना है और डॉक्टर ने yes और साथ में फोर्स एक्सर्टेड भी कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. okay हमें दे रखा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल और इनिशियल, और टाइम दे रखा है एक्सीलरेशन निकालने के लिए. okay पार्थ आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? U आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, V इज गिवन टू बी 8 मीटर पर सेकेंड एंड T इज गिवन टू बी 6 seconds. So we can calculate acceleration, right? Because देखो मोमेंटम निकालने के लिए तो सिंपल है, हम इसको आप कैलकुलेट करके सिंपली आपने वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है मास को. सो हम पहले वही कर लेते हैं. सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 100 into 5 ठीक है, 100 into 5, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम बन गया 500 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, और फाइनल मोमेंटम क्या बना बेटा? इट इज 100 into 8, तो ये क्या बना? 800 kg मीटर पर सेकेंड, राइट? अब है फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ. फोर्स एक्सर्ट करने के लिए वी विल कैलकुलेट A. फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू V minus U over T. So it is 8 minus 5 is 3, 3 over 6. That means 1/2. Okay. So F2 into 1/3. Okay. Next one is when an insect of arbitrary from spray. So that is after gender. After photo will also and if you say force limit. Okay, so think who is correct? मेरे ख्याल से Yes, beta. Who is these three? Yes. What about your opinion? ज्यादा वेलोसिटी उसकी होती है. Okay, fine. So Prithvi, what's your opinion, beta? Out of these three, who has given the correct explanation according to you? Yes, beta. Ma'am, Akhtar. Akhtar. Okay, and what's your reason? Yes, beta. What's your reason? No, ma'am, Kiran. Kiran. Okay. How? मैम इंसेक्ट कार के अंदर था. नहीं बेटा,
वो विंडशील्ड पे था बाहर की तरफ, गॉट स्टक, विंडस्क्रीन। यस, हाँ जी, क्या बोल रहे हो भव्य? मैम क्योंकि प्रेशर की वजह से मर गया विंडशील्ड पे जो आ रहा था कार की स्पीड की वजह से। Okay, but here we won't consider यार that. लेकिन मोटर कार की स्पीड वेलोसिटी ज्यादा थी। ठीक है। और आशी, आप कुछ हम कहना तो उस पे चाहते ज्यादा हो? प्रेशर पड़ेगा ना, उस पे तो मच्छर पे तो। हाँ जी। बेटा देखो ऐसा होता है, जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ कहता है ना, जो राहुल है वो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि आपकी जो मोटर कार है, इंसेक्ट है, उनमें सेम फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तभी तो इंसेक्ट डाइड, तभी वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट मर गया, क्योंकि एक तो उसका साइज बहुत छोटा और इतनी फोर्स तो वो झेल ही नहीं सकता, राइट? और उनका जो मोमेंटम चेंज है वो सेम आ रहा है, दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग, क्योंकि जो उनका कॉन्टैक्ट एरिया है वो सेम है। लेकिन जो अख्तर और किरण बोल रहे हैं वो अलग चीज है, वो आप इंसेक्ट के साथ नहीं कर सकते। जैसे मोटर कार था, ठीक है, वो लार्ज वेलोसिटी के साथ एक्सर्ट जा रहा है, लेकिन वो एक फोर्स नहीं एक्सर्ट करा, देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स लग रहा है लेकिन इंसेक्ट भी फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन एंड एक्शन, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो किरण ने बात बोली कि उसने ये कहा कि मोटर कार में जो चेंज था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन इंसेक्ट में तो फील कर रहा है वो चेंज, इंसेक्ट में भी वो चेंज आएगा। सो राहुल का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटा, राहुल का स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। ओके मैम, हाँ जी, मैम जैसे राहुल कह रहे हैं कि दोनों को चेंज फील होएगा है, लेकिन कार पे तो कोई चेंज मोटर कार का एज कम्पेयर टू, आप उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो बहुत कम है, एज कम्पेयर टू इंसेक्ट, इंसेक्ट का तो क्या होता है, मास ही नहीं होता। एज कम्पेयर टू मोटर कार, क्या इंसेक्ट का मास एग्जिस्ट भी करता है? नो, 1 नैनोग्राम। यस, इट विल बी, उससे भी छोटा होता है उसका मास तो, राइट, क्योंकि एक छोटा सा चींटी या कोई कीड़ा ही तो है, राइट? ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके चलो, अच्छा बेटा, ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन का ना मैंने गलती से शायद इस क्वेश्चन में लेबलिंग कर दी है, तो क्या हम पहले 35th कर लें, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी, राइट? डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है बेटा, ये जो ये वाली रीडिंग है टाइमिंग के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका टाइम है, ठीक बेटा, ये है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा हमें ये बताना है कि क्या जो एक्सेलरेशन है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, क्या हो रहा है ये? इंक्रीजिंग, दी गए हैं इंक्रीजिंग। यहाँ पर सबके क्यूब हाँ, सबके क्यूब आ रहे हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है या टाइम लगा लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस जो है वो एक तरह से टाइम का क्यूब आ रहा है ना? अगर आप ये रिलेशन लगा के चलो, तो आपको क्या लगता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंक्रीज इंक्रीज ही कर रहा है। इट इंक्रीजिंग ओनली। और फोर्सेस का क्या अंदाजा है, फोर्सेस का जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा उसमें फोर्स का आ रहा है, राइट? जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के क्यूब के हिसाब से है, तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा होगा फोर्स लगेगी आपकी, राइट? अच्छा, फोकस कर लेते हैं और ब्रीफ क्वेश्चन, मोमेंटम विल डाउन, क्या चीज? सॉरी, इरेज हो गया, ओके, अच्छा नहीं आया बेटा, चला गया। ओके, अब मोमेंटम बताना है बेटा कि आपका जो मास है वो गिवन है बेटा, राइट? हम सिर्फ लेते हैं 80 सेंटीमीटर है, हम करते हैं 8.8, ठीक है बेटा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस j पर सेकंड स्क्वायर, और आपका जो b वो 0 आएगा, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें v कैसे कैलकुलेट है, सिर्फ क्या करना है, वी आर गिवन जस्ट a एंड s, हमें निकालना है, सो मोमेंटम निकालने के लिए b हमें 2s की फॉर्मूला निकाल सकते हैं। yes we can calculate, very good, b square equal to a, हमें पता ही नहीं है, जीरो तो ये u square इसको माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 कैंसिल, राइट ऑफ एंड बटन का 10 मीटर पर, ओके, चलो
The same motor car can push by 3 persons with acceleration of 0.2 meters. हाँ जी. क्या बताया था मैंने कि जो डिस्टेंस था that is directly जितनी डिले फोर्स अप्लाइड होगी उसका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड जो है वो उतना बड़ा होगा. ठीक है बेटा. अब देखो 2 पर्सन है जो इस मोटर कार को पुश कर सकते हैं. अब आपने ये बताना सेम मोटर कार में 3 पुश कर रहे हैं. सो मेरी 5 PM क्लास है. हाँ बेटा यू कैन लीव. अगर पिछले 2-3 क्वेश्चन आज कंप्लीट तो आप इसको ले लें. ठीक है बेटा. मास इनटू एक्सेलरेशन. यस. ओके. निकालना है कि हर जो पर्सन है वो कितना फोर्स लगा रहा है. देखो बेटा इसमें सिंपल एक्शन वाला फंडा यूज होगा. यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे. 2 लोग लगा रहे हैं. सो 100 एक पर्सन जो है वो कैलकुलेट कर लिया जो उस पे कार पे लगा. वही 3 लोग लगा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. यस. नेक्स्ट बेटा mass a nail. The nail now. So what's the now this question will be given as homework. Okay. इसमें what is given? मैं देती हूँ mass is given, velocity is given, is given, and T is given. So force. Calculate the. मैम सारे क्वेश्चन करने हैं कॉपी में. बेटा कोशिश तो ये कर लो कि सारे कर लो. ठीक है. ये मेरे हिसाब से बेटा अगर आप कर लेते हो तो आपको ये फायदा हो जाता है कि जब एंड में आपको रिवाइज करना होगा ना बेटा तो आपके पास मटेरियल होगा. या फिर अगर आपको नहीं सॉल्व करना, मैम ने तो लिख ही दिए हैं क्वेश्चन, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी. इसके चाहे आप प्रिंट आउट निकाल लो, वो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है. बट आई जस्ट वांट कि वो चीजें आपके पास इन हैंड होनी चाहिए, क्योंकि ये फोन में रह गई फिर नहीं पढ़ोगे तुम. वो मुझे पता है ना. फोन में तो गेम्स मिल जाती हैं हमें. वो छोटा सा ही दिखता है. हाँ इसीलिए ना वो फिर. ठीक है बेटा. तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है. ओके. मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगी, फिर जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लेना. ठीक है जी. अब मोटर कार है बेटा, उसका मास है 1200 kgs और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रहा है वो. अगर हम उसकी वेलोसिटी को कम कर दें दैट मींस ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है ये आपका बन गया u. यस. और ये आपका बना v. ठीक है बेटा. यस. एंड t इज गिवन. तो सेम वही आपको a कैलकुलेट करना है एंड डेल्टा p कैलकुलेट करना है. डेल्टा p क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू v माइनस u. यस बेटा. ठीक है. और अलोंग विद दैट आपको f कैलकुलेट करना है. जब a आ जाएगा, मास आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप उसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. राइट. अब I have given you all the hints related to all the formulas. So I'll just मतलब I should be getting the answers in the next class. Okay. ठीक है बेटा. So we have finished our NCERT questions of force and laws of motion today. Right.